Hello everyone, welcome to JK Exemplified. In our previous lecture, we have covered external sector, GDP accounting, NDP and also fiscal and monetary policy. आज के इस लेक्चर में we will be dealing with infrastructures and issue involved. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में से क्वेश्चन आते हैं. दिस क्वेश्चन विल नॉट बी बेसिक स्टैटिक पार्ट. फॉर एग्जाम्पल दे विल बी मोर ऑन द स्कीम्स. तो हमने इस पूरे एरिया को डिवाइड किया हुआ है अराउंड अर्बन में रोड, रेल, एविएशन, एनर्जी एंड वेरियस स्कीम्स. सो we expect that the level of question which will be asked from this area will be difficult because it will be more of statement based. आप लास्ट ईयर 2021 का पेपर उठा के देखें JKS का एंड यू विल फाइंड द स्कीम्स विच वर आस्क्ड फ्रॉम द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वर मोर ऑफ अराउंड 3 to 4 स्टेटमेंट बेस्ड. तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए, उन क्वेश्चन को पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज. दैट्स वाई the sole focus of this video is to give you the kind of content which will help you cover all those broad areas. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले we have divided the infrastructure into rural and urban. तो जो रूरल वाला एरिया है दैट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आते हैं दैट इज़ 3. फर्स्ट इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. Second is Common Service Center, and third is Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. I hope you all are clear with this. फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये काफ़ी पुरानी स्कीम है और इसका जो बेसिक रैशनल ये था कि जो भी एरियाज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल द बेसिक रैशनल ऑफ दिस स्कीम वाज टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी. दिस इज द टर्म विच वाज यूज्ड, लास्ट माइल कनेक्टिविटी. उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बट द कि इस स्कीम की जो क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल विच एरिया विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम्स आर 2. दे विल बी 500 पॉपुलेशन इन द प्लेन. जो प्लेन एरिया में पॉपुलेशन शुड बी अराउंड 500 टू गेट एक्सेस टू दिस स्कीम. Okay, and in hilly area in northeast region it should be 250. Okay, so 250 household, 250 population should be there in order to cover the area of hilly and northeast area and even the tribal areas, backward areas, whereas with respect to plain population it should be around 500 households. And another feature of this Pradhan Mantri ग्राम सड़क योजना इसका ये है कि इट नॉट ओनली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स बट इट आल्सो इन्वॉल्व द रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड रोड्स. सो इसमें नई रोड तो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं बट इवन द ओल्ड रोड्स विल आल्सो बी कवर्ड. सो इफ देर इज अ वन स्टेटमेंट दैट डज इट कवर द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, द आंसर विल बी रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल इट कवर बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड. ग्रीन फील्ड इज नथिंग बट द न्यू construction. Brownfield is the repairment of some project which is lagging over in a year, and if you want to go for investment in that particular area then it come to the brownfield investment. Okay, so second is common service center. कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा एरिया नेशनल डिजिटल मिशन के अंडर लॉन्च किया गया था. इसका पर्पज़ ये था कि एक ऐसा एरिया बनाया जाए एट विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, सो दैट any kind of service which can be accessed there. Let's say this is common service center. Okay, and यहाँ पे क्या है कि you will be having paralegal volunteers. Let's say there is some kind of case going on and the most of the population of the rural India is illiterate. So in order to make them acquaint with the nature of law process, they came up with the concept of para volunteers. So ये जो people हैं ये कहाँ पे रहेंगे? They will be staying in this common service center. Okay. Second feature is that they will be making the area from where farmer can get access to loan. Okay. The question of financial literacy. Okay, then again schemes
जितनी भी गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च कर रही है, दो स्कीम्स, द इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम, फॉर एग्जाम्पल वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस स्कीम शुड बी अवेलेबल at this common service center. All right. And another feature of common service center is that if you want to educate the rural India, if you want to go for investment planning and all those things, all the relevant, the nature of schemes are actually covered in this area. Okay, so government ने ये ऐसा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे they will be covering education, health, farmer loan, then financial literacy, schemes के provision क्या है, who is eligible, who is ineligible, and the kind of document which are required, all these are provided at this common service center. Okay, and it is under National Digital Mission. All right, and third and most important thing with respect to rural India is that Pradhan Mantri Awas Yojana. So we'll be covering Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin and Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, both combined. Urban infrastructure में important, again there are four. First is this one, Pradhan Mantri Awas Yojana, and we will be dealing with in detail. All right, and second is smart city mission. Second is smart city mission. Okay, and third is Amrut Yojana. These are the most important. There are a number of schemes with respect to urban infrastructure, but we are sticking to the most important one because हम उन्हीं को कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आस्क होने की है. फॉर एग्जांपल दिस आवास योजना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट योजना और इसके ऊपर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द प्रोविजन एंड द क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली डिफिकल्ट. इफ दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना, इट विल नॉट बी अ इजी क्वेश्चन, रादर it will be a statement based question. Okay, so let's go with the first one, that is Pradhan Mantri Awas Yojana. Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण एंड अर्बन. इसका बेसिक रैशनल ये था कि जो हाउसिंग है दैट शुड बी अफोर्डेबल. अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे देर आर पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लेवल and in order to give them paka house, they are not able to afford those kind of things. So government came up with the provision that is called प्रधान मंत्री आवास योजना कि उसके बेसिस के ऊपर हम एक हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे. वहाँ पे जो कास्ट जो होगी दैट विल बी शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड एनीबॉडी हु इज़ एलिजिबल अंडर कास्ट सेंसस 2011 they can go for Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Alright. Another feature of this project is that जो भी ownership है इस house की that will be either joint plus on the name of woman. तो wife के नाम के ऊपर होगी और woman के नाम के ऊपर होगी और it will be a joint household. So it will boost woman empowerment. Okay. So it will boost woman empowerment. Right. विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो इसके प्रोविज़न यही हैं. फॉर एग्जांपल अर्बन जो एरियाज़ हैं दे कंट्रीब्यूट अराउंड 60% ऑफ इंडियाज़ GDP. सो 60% ऑफ GDP इज़ कवर्ड बाय द सिटीज़. ऑलराइट. एंड सेकंड इज़ दैट अराउंड 30% of the population is living in urban areas, and every year the migration is from rural to urban. So in order to accommodate these migrant people, they need to have some kind of rental policy or a household policy. For example, this population is expected to increase to 40% or 50% by 2050. So if you see the population is continuously increasing and the basic amenities, for example health, water, sanitation, okay, house, these all are missing in the urban area. In order to accommodate and in order to cover these areas, the government has come up with the provision of Pradhan Mantri Awas Yojana in urban. The concept is same, but यहाँ पे difference ये है कि in urban area the government is targeting not only the BPL section but it also targeting the economic weaker section also. For example, इसके provision divided है. In urban area it has given to 3 area. First is BPL, second is slum free. This slum free
area, the target of this Pradhan Mantri Awas Yojana was aimed by Rajiv Gandhi Awas Yojana. Previously there was a scheme Rajiv Gandhi Awas Yojana. उसका पर्पज़ ये था कि जो स्लम्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटी दी जाए और उनके हाउस होल्ड को पक्का किया जाए. ऑलराइट, तो गवर्नमेंट ने उस स्कीम को रिवर्ट करके थोड़ा सा मोर एक्सपेंड करके दे हैव केम अप विद दिस कंसेप्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना. उसके 3 प्रोविज़न है. First is it will be covering BPL, those people who are below poverty line, they will be giving affordable housing. Second is they will be slum free areas. Okay, and third is those people जो एक मिडिल सेक्शन में है, okay, इकोनॉमिकली empowered people हैं बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द हाउस, दे विल बी आल्सो गिवन द कवरेज. सो 3 एरिया हो गए, ये 3 एरिया को कवर करेंगे. एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कोविड-19, ड्यूरिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस माइग्रेंट एंड रेंटल इशू, तो इसके टाइम के ऊपर इन्होंने देख में विद कहा था रेंटल हाउसेस. देखे में विद रेंटल हाउसेस. These are the 4 most important basic pillar of Pradhan Mantri Awas Yojana. And the question can be asked, for example, in the statement based, the economically empowered people are covered in this Yojana. Okay, for example, it is aimed at making India slum free. Okay, these are the base provision of the Pradhan Mantri Awas Yojana. All right, so target was 2022. Okay, and all the around 15 lakh houses are already constructed. This is with respect to mains, not very important. Okay, but date is important. All right, so and who is the ministry overall responsible for implementation of this scheme? That is urban and housing affairs. All right, बाकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है. इसको implement करने के लिए there was this SWAM fund and alternate investment fund. Next is Amrut Yojana. Amrut Yojana is again aimed at इंक्रीजिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि वाई वी आर फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसलिए फोकस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ रेल, रोड एंड अदर बेसिक कम्युनिटीज अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर एरिया. तो उनसे क्या होगा, इट विल गिव कवरेज टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री. एंड दिस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्री विल प्रोड्यूस मोर गुड्स, सर्विसेज. Okay, and these services will help in increase in growth. So overall, if you see, infrastructure is linked with this cycle: more growth, more investment, more infrastructure, and this is a continuous cycle which is going on. So government is trying to come up with such kind of the model where the investment can be invested again and again to bring and instill growth in the country. Okay, so next is Amrit Yojana. Amrit Yojana is nothing but Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation. इसका पर्पज़ ये है कि जो भी हाउस होल्ड हैं अर्बन एरिया में, उन्हें पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिया जाए. ऑलराइट, सो पाइप वाटर कनेक्शन मीन्स फर्स्ट इज दे शुड बी गिवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़. ओके, बाकी जो इसके भी एरियाज़ हैं यहाँ पे लिखे गए हुए हैं. ऑलराइट, these are important with respect to Amrit Yojana. Increase the amenity value of the cities by developing greenery and maintaining open space park. It is again one of the feature. For example, if they are asking a statement in the Amrit Yojana, जैसे हम सोचते रहते हैं कि अमृत योजना में it is only with respect to pipe water and drinking water. So if they are taking that the open space park can also be built under the Amrit Yojana, yes, the statement is accurate. All right. Next is with respect to planning, and the objective should be planning and sustainable planning. Okay, that's all. Another feature of urban infrastructure is that स्मार्ट सिटी मिशन. स्मार्ट सिटीज़ मिशन का ये है कि गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की थी. इसका पर्पज़ ये था कि दे विल बी गिविंग 100 करोड़ एंड दे हैव आइडेंटिफाइड 100 सिटीज़ फॉर अवर 5 ईयर. सो दिस इज टारगेट ये है कि हर एक सिटी में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जाएगी और वही काउंटर पार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट करेगी, एंड दे विल बी ऑन द पायलट बेसिस कवरिंग 100 cities, एंड लेटर दीज सिटीज़ वर इंक्रीज टू 500. सो जब इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी स्मार्ट सिटीज़ में, सो डेफिनेटली देयर विल बी काइंड ऑफ बूस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे आप देख सकते हैं how investment will be called as smart investment when this investment is aimed at making digital solution for problems.
For example, if you want to open a business, okay, and you need to store data, and for data you need some kind of physical storage in the form of hard drives. These hard drives are costly, so initial cost of opening a business become difficult, okay, become costly. In order to cut this expenditure, government came with the solution of स्मार्ट सिटीज मिशन. तो स्मार्ट सिटी मिशन में क्या है कि ये एक्सपेंडिचर कट हो जाएगा एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. So in cloud computing, you'll be buying a particular space, and you'll be paying nominal fee, and you don't need to invest this physical hardwares. All right. So this is the basic rationale for this smart city mission. This is the one aim. Second aim is with respect to community at core. जो भी कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम है दे शुड बी एट कोर. ओके. और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द सोल्यूशन शुड बी इनोवेटिव, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. फॉर एग्जांपल, building one cities, second city, third city. This city is good with respect to textiles. This is city with good respect to cotton. Okay, let's say maybe silk, maybe peppers. Okay, so in order to boost the demand, they should be made competitive federalism again. And again, let's say there's again the one is also good in textiles. So quality of textile in this city and quality of textile in this city, they both will vary. In order to cover these areas, they come up with a solution called as smart cities to bring cooperative and competitive federalism. Okay, innovative solutions, technology, बाकी जो इसके प्रोविजन है वो यहाँ पे दिए गए हुए हैं, and you can go for it. Alright, these are simple, just normal, and you can read all these things in the slide which are given in our Telegram channel. Alright, next with respect to urban इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन. ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है. इसका पर्पज़ ये था कि जो भी हम स्कीम लॉन्च करते हैं या जो भी हम गवर्नमेंट का जो फॉर एग्जांपल लेट्स से दे आर गोइंग टू प्लान फॉर द डिजिटल मीटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो दीज थिंग्स आर नॉट सिटीजन सेंट्रिक. वाई? बिकॉज दे डोंट हैव द काइंड ऑफ इनकम विच इज़ रिक्वायर्ड to provide the kind of service which is given by the government. Okay, so first they need to have resources, so it means citizens should be the center. Okay, the problem faced is that citizen is not at the center. They lack basic skills. Urban local bodies, they are not equipped with finance, they are not equipped with R&D, not with human resource. Okay, so these were the basic problem faced in the cities. सेकंड इज़ जो भी मॉडल हैं वहाँ पे बिज़नेस के, जैसे हमने डिस्कस किया, दे आर मोस्टली वेरी कॉस्ट, उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है. एंड थर्ड इज़ देयर इज़ लैक ऑफ इंक्लूसिव सोल्यूशन. ऑलराइट, एंड द फोर्थ इज़ लॉन्ग डिलीवरी टाइम. लेट्स से इफ़ यू वांट टू गो टू इन अ गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द पासपोर्ट or some ID card or to avail a scheme, okay, let's say education loan, all these things are taking longer duration, that is the longer delivery time. So जब time increase होता है, so the profit which can be reaped in those time framework is not up to mark. जैसे for example, there's a people who want to buy credit to set up some kind of small business. Let's say there's a one scheme that is stand-up scheme, okay, startup scheme. Stand-up is for women, startup is for ST/SC. okay, so इसका पर्पज़ ये है कि these people should be equipped to start some basic MSME sector. और जब इसी के लिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स ए पर्टिकुलर एरिया, और उसकी डिमांड उसी पर्टिकुलर एरिया में है, इन द लेट्स से दे वांट ट्रक फार्मिंग. ओके, सो ट्रक फार्मिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दिस सीज़न, ज़ैद सीज़न इज़ टाइम बाउंड. तो उसके पर्टिकुलर सीज़न में यू नीड टू हैव क्रेडिट, यू नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट. तो जब लॉन्गर डिलीवरी टाइम है, so this investment will not be coming up. And these were the basic problems which were faced by the urban India. In order to avoid these things, in order to bypass these things and try to bring inclusive growth, government came up with this kind of national urban digital mission. Alright, और इसके फीचर्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं. इंस्टीट्यूशनलाइज पीपल एंड प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेस हैं उनको प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए.
load-based thinking in order to avoid any physical cost, upfront cost of a particular business. And all these points are written here. These are simple. Basic principles are privacy, consumer friendly, collaborative, inclusive, and all these are written here. So these are the basic aim of नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन. क्वेश्चन विल बी बेसिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं यही मेन पॉइंट है. सो क्वेश्चन कैन डायरेक्टली बी फ्रेम फ्रॉम दिस एरियाज. ऑलराइट, सो जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड्स एंड सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एरिया. ओवरऑल जो उनका रैशनल है वो मैंने बता दिया है. दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज रीडिंग you have to do, and we are just facilitator. We'll be providing the details which is required to cover the exam. Okay, we cannot teach you everything in whole detail. We are just facilitator. Okay, so this is important with respect to exam. Next is गति शक्ति. तो गवर्नमेंट ने एक और अभी मास्टर प्लान लॉन्च किया. इसका पर्पज़ ये है, इसका रेशनल क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि लेट्स से दिस अ वन रोड. ओके, and this is road department, this is electricity department, this is water department, jal shakti department. Okay, so now if first road department came and they came up with the road. Okay, this is a pakka road. Okay, now electricity, the people involved in electricity, now they came and they dug, उन्होंने ये खोद दी, रोड को खोद के यहाँ पे वायर्स इंस्टॉल कर दी. ओके, सो जो पर्पज़ था इनिशियली, जो इन्वेस्टमेंट की थी रोड वालों ने जहाँ पे, इट इज़ गॉन. ओके, सो दे डग द होल रोड. ओके, एंड थर्ड इज़ व्हेन द वाटर पाइप्स आर टू बी लेड, they again came and they again dug the whole road. So the whole purpose of road is defeated. It means the cost is just duplicating. The purpose of this Gati Shakti master plan is that कि इन सब ministries की collaboration होनी चाहिए. Okay, there are around more than 16 ministries. उन सब 16 ministries को collaborate करके work करना है and they need to come up with a master plan. ये master plan ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले there should be pipes. Okay, sewage pipes, then there should be electricity wires, and after that there should be road. Okay, so when we'll be having this, इसके होने के बाद जो गड्ढे खोदने पड़ते हैं रोड के ऊपर, it will get minimized, और it can save lot of resource, lot of funds. This is the basic rationale for this गति शक्ति इंटरनेशनल मास्टर मिशन. तो इसके 6 पिलर हैं. फर्स्ट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट ये है कि देयर शुड बी वन सेंट्रलाइज पोर्टल. उसके बेसिस के ऊपर इफ़ यू कैम विद सम काइंड ऑफ वर्क, इट शुड बी इनिशिएटेड, इट शुड बी कंसल्टेड विद ऑल 16 मिनिस्ट्रीज. उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जाए. सेकंड इज़ प्रायोरिटी शुड बी गिवन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, थर्ड इज़ ऑप्टिमाइजेशन. जो रिसोर्स हैं उनको प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया जाए. And synchronization, dynamic. Okay, all these things are written here. These are the basic features of Gati Shakti process. So there can be one liner question. For example, what is Gati Shakti project? तो गति शक्ति का यही rationale है कि जो भी हम wasteful expenditure कर रहे हैं due to lack of coordination among different departments, different ministries, which can be avoided. Alright. और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है रोड सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी. सेफ्टी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इफ़ यू सी हर साल अराउंड 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं. तो इस चीज़ को कवर करने के लिए देयर इज़ अ स्टॉक होल्ड डिक्लेरेशन. वो भी यही कहती है कि उसमें इंडिया ने कमिट किया हुआ कि वी नीड टू ब्रिंग डाउन 50% ऑफ जो भी फैटलिटीज़ हैं रोड से, कैजुअलिटीज़ हैं उसे बाई 2030 से. इसको कम करने के लिए, इस डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो टारगेट है, जो कमिटमेंट किया हुआ है इस डिक्लेरेशन के अंडर, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कैम अप विद दिस रिसेंटली मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019. इसने अमेंड किया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988. और उसने क्या किया गया, सबसे पहले जो उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की है, उसने गुड समार्थिन को डिफाइन किया. गुड समार्थिन वो हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रोड एक्सीडेंट एंड द पीपल पर्सन क्लोज बाई देयर वॉकिंग, सो दे आर नॉट गोइंग फॉर हेल्प. Why? Because of the police case. So police can frame them in the case in order to bypass the harassment faced during the police station. They usually do not help. तो वो हेल्प नहीं करते हैं, और हेल्प ना करने के कारण इट रिजल्टेड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. तो इसने डिफाइन किया है
कि गुड्स मार्जिन कौन सा होता है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी ambiguity in that definition. There should be a clear cut definition, and he should not be punished for the help which he has done in the good public interest. Second जो है that is national transportation policy. सेंटर एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करे जिस पॉलिसी में वो स्टेट को कंसल्ट करके सो दैट द रोड सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव्ड, लाइव्स ऑफ पीपल कैन बी सेव्ड. एंड थर्ड प्रोविजन इज द रोड सेफ्टी बोर्ड. इस रोड सेफ्टी बोर्ड इट विल बी अ मेन सेंट्रल बोर्ड जो पूरे जो भी मोटर व्हीकल्स हैं उनके स्टैंडर्ड सेट करेगा, उनके रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑल दिस वर डन थ्रू दिस रोड सेफ्टी बोर्ड. थर्ड इज देयर शुड बी ए इंश्योरेंस सिस्टम और इंश्योरेंस और कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी. इफ इस इंजरी इज इन डेथ इट कैन लीड टू अराउंड 50,000 compensation, and if it's not life threatening, it can be just only just disabled, then it can be around 10k. So there should be a compulsory insurance fund. एक फंड क्रिएट किया जाएगा जिसके ऊपर में जो भी emergency ट्रीटमेंट चाहिए होगी विक्टिम्स को, सो दैट देयर लाइफ कैन बी सेव्ड, दिस फंड कैन बी यूज टू यूटिलाइज दोस. एंड थर्ड इज रिकॉल ऑफ व्हीकल्स. जो व्हीकल हैं जिनका डिफेक्ट फॉर्म हुआ, जिनका भी डिफेक्ट फाउंड हुआ कुछ भी, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दे कम विद कंसेप्ट ऑफ recall of vehicles, and through this recall of vehicle the vehicle can be recalled. The fourth is, the last one is taxi aggregator. जैसे आप सिटीज़ में देख सकते हैं, सिटीज़ में क्या होता है कि डिमांड काफ़ी हाई होती है एंड देयर आर मैनी कम्यूटर्स एंड सो शेयरिंग बिकम ईजी. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टैक्सी एग्रीगेटर. बट प्लीज़ नोट दैट मीन वाइल दीज आर द डिजिटल इंटरमीडिएट्स. सो उन्होंने वो भी जो नॉर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर वो दे वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू रोड सेक्टर और यही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स. नेक्स्ट इज़ रेल्स. तो रेल्स में कैग की रिपोर्ट आई है. कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने ये कहा है कि जो रसीद ली हैं 2020 में वो डिक्लाइन हुई हैं बाई अराउंड 8%, बिकॉज 2018-19 में देयर वाज अ ग्रोथ बाई 6.47%, बट दिस ईयर इट डिक्रीज टू 8.30%. और उस डिक्रीज़ के कारण जो भी वो लॉस मेकिंग है वो लॉस कंपनसेट कर रहे हैं थ्रू क्रॉस सब्सिडाइजेशन. क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ वन पैसेंजर ट्रेन एंड सेकंड इज़ फ्राइट ट्रेन. ओके, तो जो फ्राइट ट्रेन है विच इज़ कैरिंग कोल एट्सेट्रा, इसको चार्ज ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस. सो द रेवेन्यू विच दे मेक फ्राम दिस इज़ यूज्ड, it's cross subsidized in here to compensate for the loss. This is with respect to cross subsidization. Okay, and if you see operational जो ratio है वो भी deteriorate हुई है from 97.29% into 98.39% in 2019. Okay, so अब रेल में रिफॉर्म कैसे हुए? वो एक कमेटी फॉर्म हुई थी विवेक देवराय की कमेटी, उसके बेस के ऊपर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात की थी. जो भी कोर एरियाज़ थे रेलवे के वो ही बस उनके ऊपर कहा था कि जो कोर एरिया हैं उनके ऊपर ही रेलवे को स्ट्रिक्ट करना चाहिए, द अदर एरिया शुड बी प्राइवेटाइज्ड. ओके, और उसकी बेसिस के ऊपर भी आज चीज़ हो रही है. दिस इज़ अ कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में. इट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर रेलवे एक्ट 1989 और ये डील करती है विद केसेस विद रिस्पेक्ट टू रेल एक्सीडेंट एट्सेट्रा. और इसकी पेरेंट कमीशन जो है, प्लीज़ नोट, इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रादर इट्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. ओके, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन आहट लॉन्च किया. ऑपरेशन आहट वो ऑपरेशन है जैसे सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, वुमेन एंड अदर एरियाज़ वो रेलवे के थ्रू होती है. एंड इस चीज़ को कर्ब करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन आहट लॉन्च किया गया हुआ है. ओके, थर्ड इज़ नेशनल रेल प्लान. नेशनल रेल प्लान का रैशनल ये है कि जो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो रेलवे के ऊपर पॉपुलेशन है उसका शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, बट कैपेसिटी इज स्टिल द सेम. इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द इंक्रीजिंग कैपेसिटी दे केम अप विद दिस विजन 2024 डॉक्यूमेंट. और उसके बेसिक ऊपर ये कहा हुआ है कि दे विल इंक्रीज the infrastructure so that they can accommodate the increase in traffic by 2030. Okay, next is
दे लॉन्च्ड अ पोर्टल, जो भी रेलवे के जो वर्क हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रैक्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, कोच को बिल्ड करने के लिए, एंड अदर मोर एरियाज कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, बिडिंग एसेट्रा, उसके लिए दे लॉन्च्ड अ पोर्टल दैट इज़ ई श्रमिक कल्याण पोर्टल। ओके, सेंटर ने एक रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है। उस रेल अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश की है उसका सोल पर्पज़ ये है कि वो जो फ्राइट टैरिफ्स हैं उनको सेट करे, और जो सर्विस क्वालिटी है जो भी एक पैसेंजर ट्रेन में या अदर ट्रेन में प्रोवाइड की जाएगी उसके भी बेंचमार्क बनाए जाएं, सो दैट अ बेटर सिटीजन सेंट्रिक रेलवे डिपार्टमेंट कैन वर्क। दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू रेलवे, यही इंपॉर्टेंट एरिया हैं रेलवे के। ओके, नेक्स्ट इज सिविल एविएशन। वी ऑल आर अवेयर, सिविल एविएशन में एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आई थी, उसमें जिसे उड़ान स्कीम भी कहा जाता है। उसका पर्पज़ ये था कि जो भी रीजनल एरियाज़ हैं, जो भी हिंटरलैंड एरियाज़ हैं, जैसे पहाड़ी एरियाज़ हो गए, अदर एरियाज हो गए, वहाँ पे एयरपोर्ट या हेलीपैड को इस्टेब्लिश करें। और सेकंड थिंग इज़ जो कास्ट है, द कास्ट शुड बी अराउंड, कास्ट भी काफ़ी लेस की जाए, इट शुड बी अराउंड 2500 फॉर अराउंड 30 मिनट टू 1 आवर जर्नी। ओके, और जो बाकी सीट्स हैं उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करे। दिस वी ऑल आर अवेयर, ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, मोस्ट अनलाइकली कि इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाए। 100 डेज़ प्लान फॉर बूस्टिंग एविएशन, और इस प्लान के अंडर एविएशन को बूस्ट करने के लिए उन्होंने न्यू एयरपोर्ट बनाए, फॉर एग्जांपल इन आसाम एट्सेट्रा। उनके नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज़ हेलीपैड भी फॉर्म किए गए हुए हैं, सो दैट जो भी रीजनल एरियाज़ है वहाँ पे भी इसकी डिमांड इंक्रीज़ की जाए। एंड देयर इज़ MRO पॉलिसी, MRO पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल पॉलिसी। जो ऑपरेशनल कॉस्ट है एयरप्लेन्स की और जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट को काफ़ी कम करने का जो बेसिक प्रोसेस है दैट शुड बी डन थ्रू दिस 100 डेज़ प्लान। ओके, अभी रिसेंटली एक एक्ट पास किया गया, उस एक्ट का नाम है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट। इसके बेसिस के ऊपर इसने जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो एरा जिसको बोलते हैं, उसको ये कहा गया हुआ है कि वो जो एयरपोर्ट के मेन टैरिफ्स हैं और उनको वो रेगुलेट करे, और जो सर्विस वहाँ पे अंदर प्रोवाइड हो रही हैं उन सर्विस को आराम से वो रेगुलेट कर सकता है। ओके, उसके इम्पॉर्टेंट क्लास ये हैं कि जो गवर्नमेंट है नाउ दे कैन फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट दे कैन डेजिग्नेट एनी पोर्ट एज मेजर रेट। फॉर एग्जांपल जो थ्रेश होल्ड थी 15 मिलियन ट्रैफिक की या 20 मिलियन ट्रैफिक की, गवर्नमेंट कैन यूजली गो एंड बाईपास सच काइंड ऑफ लिमिट्स एंड दे कैन प्लेस एनी पोर्ट एज मेजर एयरपोर्ट। ओके, उससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल, फॉर एग्जांपल इट्स अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, okay, so there are multiple airport, so there's a one major airport and other minor airport, so there's a provision for grouping airport, so that जब इन एयरपोर्ट को ग्रुप किया जाएगा तो जो लोक्रेटिव एयरपोर्ट्स हैं उसमें जो फ्लाइट्स आ रही हैं, दोज फ्लाइट्स टिकट्स इफ़ दे बिकम ओवरफिल्ड दे कैन बी transferred to these other non-profitable ones, and so that this cross-subsidized profit can be shared and better citizen-centric governance can be promoted. Okay, this is with respect to this recently Airport Economic Regulatory Authority of Amendment Act 2021. नेक्स्ट इज एनर्जी में कोल शॉर्टेज अभी रिसेंटली काफ़ी हाई हुई है, और कोल शॉर्ट के कारण काफ़ी पावर डिस्कॉम में इशू हुआ है। वन ऑफ द मेजर इशू इज़ पावर डिस्कॉम जो हैं दे आर लॉस मेकिंग। इवन इफ़ यू सी, जो गवर्नमेंट ने ये कहा गया था कि अपना जो फिजिकल डिफिसिट है यू कैन इंक्रीज टू अराउंड 5%, स्टेट्स को कहा गया हुआ है, सो दैट जो पावर डिस्कॉम है एंड द अदर एरियाज दिस शुड आल्सो बी स्टेप शुड बी टेकन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ पेमेंट्स। ओके, सो पावर में अभी रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, दिस इज़ रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी लॉस होते हैं, ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ एनर्जी प्रोड्यूसर, पावर प्रोड्यूसर, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग के टाइम जो भी लॉस होते हैं वो ओवरऑल अभी 25% से ऊपर हैं। However, they want it to reduce it to the 12 to 15% by 2025. Second is जो भी ASR और AR गैप है it should be reduced to 2020 to 0. Okay.
जो एक्चुअल जो पोटेंशियल है इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू पोटेंशियल, इट शुड बी डन। थर्ड इज़ मॉडर्न डिस्कॉम को स्मार्ट मीटरिंग एसेट्रा इट शुड बी डन एंड इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। अनदर फीचर ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट, जो ये है कि इसने ये कहा गया हुआ है कि जो ग्रिड हैं, ग्रिड को सेग्रीगेट किया जाए। सेग्रीगेट करने का ये मतलब है जैसे दिस इज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड दिस इज़ फॉर डोमेस्टिक, ओके, सो दैट जो भी इसमें जो भी नीड है इलेक्ट्रिसिटी इस पॉइंट के ऊपर, इट शुड बी गिवन completely and it should be कुसुम। there is a one scheme कुसुम। कुसुम का पर्पज़ ये था सोलराइजेशन। सोलराइजेशन का ये मतलब है कि जो फार्मर थे उन्हें सोलर लाइट्स दी जा रही थी, सोलर दिस वन सोलर सिस्टम, और जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे इट कैन बी यूज्ड फॉर द पम्प्स, एग्रीकल्चर पम्प्स फॉर इरिगेशन। So supplemented by this KUSUM solarization scheme, this is the other feature of this scheme। and third is use of prepaid smart metering, और ये भी दिया जाए। फॉर एग्जांपल इसमें उन्होंने इंसेंटिव प्रोवाइड किए हैं इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी रिमोट एरियाज जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, सो द पब्लिक जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट दी जाएगी इसके बारे में, okay, they will be giving more profits। this is the basic feature and 12 to 25 crore meter should be done, okay। next is district level power committee। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो इफेक्टिवली मैनेजमेंट करने के लिए पावर के इशू को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट कमेटी की है। इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी द चेयरमैन, और बाकी जो मेंबर हैं दे कैन आल्सो बिकम द को चेयरमैन, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द मेंबर सेक्रेटरी, ओके। एंड देयर इज़ वन अदर इम्पॉर्टेंट एरिया, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। वन नेशन वन स्टैंडर्ड ये है कि इफ़ यू सी देयर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू फूड्स। जैसे ऑर्गेनिक अगर क्रॉप है तो उसके स्टैंडर्ड अलग हैं, ओके। फॉर एग्जांपल देयर इज़ राइस, वीट, उसके स्टैंडर्ड अलग हैं। आल दो देयर इज़ ओनली वन स्टैंडर्ड इज़ अ सोल नेशनल अथॉरिटी, बट जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो अपने अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे फूड सेफ्टी जो है वो अलग स्टैंडर्ड सेट करती है फूड का, ऑटोमोबाइल हैं जो वो अलग स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। इन सब स्टैंडर्ड्स को एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाने के लिए सो दैट एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट इन द एक्सटर्नल कंट्रीज़ इन यूरोप एसेट्रा वहाँ पे प्रॉब्लम फेस ना करें, दे केम अप विद द सोल्यूशन कॉल्ड एज वन नेशन एंड वन स्टैंडर्ड। दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल रोड, यही इंपॉर्टेंट है। शिपिंग में सागरमाला, भारतमाला, these are basic। for example सागरमाला for the connectivity and development of ports, and भारतमाला जो भी ये इंटर जो रोड्स हैं उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, this is the concept of सागर वैनी फॉर GIS सिस्टम का यूज़ करने के लिए, जो भी शिपीज़ यहाँ पे जो वो वेसल्स होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए। there is Gemini portal, this is all for the communication in the deep seas with the fishermen। these are all important, but these are not very important with respect to exam JKS के लिए इतना करंट अफेयर काफ़ी है, अगर क्वेश्चन आना होगा तो वो इसी एरिया से आएगा, ओके। दैट्स ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद JK Exemplified। थैंक यू वेरी मच।